Now we'll start a new chapter called application of derivatives. Now as the name suggests, application of derivatives means जो हमने differentiation chapter पढ़ा है उसका use कहाँ होगा. How will we apply the concepts of differentiation in various cases? तो जो topics that we'll cover in this chapter are tangents and normal, rate measure, increasing and decreasing functions, approximation and maxima and minima. मतलब डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट हमें इन केसेस में अप्लाई करके देखेंगे. दीज आर एक्चुअली डिफरेंट चैप्टर्स ऑल टुगेदर जिसमें डिफरेंशिएशन का यूज हो रहा है. द फर्स्ट चैप्टर दैट विल टेक अप इज टैंजेंट एंड नॉर्मल. नाउ वी स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर फॉर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड दैट इज टैंजेंट एंड नॉर्मल्स. नाउ टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू स्ट्रेट लाइंस. जो हम लोग 11th में पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइंस, बिकॉज टैंजेंट और नॉर्मल बेसिकली लाइंस ही हैं. तो जो इक्वेशंस और जो कॉन्सेप्ट हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे वो काफी हद तक यहाँ यूज होंगे. सो लेट अस स्टार्ट बाय अज्यूमिंग a curve y is equal to fx and let that curve be, let's say, this. Now let's say we choose a point P and a point, let's say, Q. So we draw a chord PQ. Now what we do is हम इस Q point को along the curve P के along P के पास लेके आते हैं. Now this curve becomes ऐसे हो गया. Then we bring Q even closer. तो अब हमारा ये हो जाएगा कॉर्ड एंड सो ऑन. एक स्टेज ऐसा आएगा कि when Q will tend to P, Q P के बहुत करीब आ जाएगा and at that point ये जो एक्चुअली कॉर्ड था PQ has turned into a tangent at T. Let's say this is T1. तो PQ chord has now turned to tangent at P, and that tangent is, let's say, PT1. Similarly, we take a point, let's say R, and join PR. Now we bring the point R close to P along the curve. तो क्या होगा, ये कॉर्ड छोटा होता जाएगा. Let's say we bring the point even closer. Let's say हम यहाँ पे आ गए R, तो हमारा कॉर्ड हो जाएगा, let's say use a different color, ऐसे. Let's say ये हमारा कॉर्ड हो जाएगा. नाउ जब R टेंड्स टू P होगा, when R becomes very close to P, तो क्या होगा, कॉर्ड PR will tend to similarly tangent at P and let that tangent be, let's say we use different color. This, तो let this tangent be T2. तो when you approach P from two different directions and you find that the chord from both sides tend to the same tangent, that is if PT1 is same as PT2, that is जो tangent हमने Q से मूव करते हुए बनाया था और जो R से मूव करते हुए बनाया था मूविंग टुवर्ड्स P, अगर वो दोनों टैंजेंट सेम हो जाए, लेट्स से दोनों टैंजेंट हमारे कॉमन यही हो गए एट P. लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर. ये कॉमन टैंजेंट हो गया दोनों तरफ से. तो देन वी से
then this T1 T2 becomes tangent to the curve at P. Obviously जो tangent और normal का केस है that is point related to point phenomena, हर point पे different tangent बनेगा. For example ये है कर्व, तो अगर हम ये पॉइंट लेते हैं P, यहां पे tangent ऐसे होगा. लेट्स से वी टेक पॉइंट Q, लेट्स से वी टेक पॉइंट Q, यहां पे tangent क्या होगा? लेट्स से ये होगा. किसी और पॉइंट पे ले, लेट्स से दिस इज R, यहां पे tangent बनाएंगे तो डिफरेंट होगा. तो यानी tangent पॉइंट फिनोमेना, पॉइंट से रिलेटेड, किस पॉइंट पे हम tangent बना रहे हैं इज इंपॉर्टेंट. नाउ तो tangent बेसिकली क्या है? इट इज द लिमिटिंग केस ऑफ chord. जो chord का लिमिटिंग केस है, दैट इज लिमिट Q टेंड्स टू P, PQ will tend to PT1. Similarly, limit R tends to P, PR will tend to PT2. If PT1 equals to PT2, then T1 T2 is the tangent to the curve y equals to fx at P. Now एक important चीज ये है कि we are constantly saying curve y is equal to fx, curve y is equal to fx, and we are not saying function y is equal to fx. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि in case of tangent and normals, in case of tangents and normals, tangents and normals can be found even if the curve is not a function. मतलब y is equal to fx को फंक्शन होना जरूरी नहीं है for us to find out tangents and normal. मतलब फंक्शन की प्रॉपर्टीज हो ना हो उस कर्व में, फिर भी हम टेंजेंट नॉर्मल बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो अगर हम इसका शेप देखें तो ऐसे होता है. नाउ अगर हम एक लेट्स से वी टेक एन इनपुट, लेट्स से x इज इक्वल टू 1. अगर x को 1 लेंगे तो 1 स्क्वायर इज 1, स्क्वायर इज इक्वल टू 1. रादर यहां पे हम लेट से 4 ले लेते हैं. लेट से वी टेक यहां पे 4, तो ये आएगा 4. तो y स्क्वायर क्या आ गया 3, y कम्स आउट टू बी प्लस माइनस रूट 3. यानी हमने जब x को 1 इनपुट दिया तो वी आर गेटिंग 2 आउटपुट्स, एक इधर एक इधर. दिस इज 1 कॉमा रूट 3, दिस इज 1 कॉमा माइनस रूट 3. नाउ ऑब्वियसली अगर एक इनपुट पे 2 आउटपुट्स आ रहे हैं, देखो दिस इज नॉट अ फंक्शन, फंक्शन नहीं है ये, क्योंकि ये तो फंक्शन की कंडीशन ही वायलेट कर रहा है. बट स्टिल हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी पॉइंट को सर्कल के टैंजेंट और नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं, उनकी इक्वेशंस फाइंड कर सकते हैं, इवन इफ दिस इज नॉट अ फंक्शन. तो एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि फंक्शंस होना जरूरी नहीं है कर्व को फॉर टैंजेंट्स एंड नॉर्मल टू एग्जिस्ट. टैंजेंट नॉर्मल हम फंक्शन ना हो, सिंपल कर्व हो तो भी निकाल सकते हैं. नाउ एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि लेट्स से वी हैव अ कर्व y इज इक्वल टू fx. तो हमने जब
फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि अगर कोई पॉइंट P है एंड उस पॉइंट पे टैंजेंट हम ड्रॉ करते हैं, टैंजेंट एट P एंड y इक्वल टू f हमारा एक कर्व है या फंक्शन है, तो dy by dx ये जो हम वैल्यू निकालते थे दैट रिप्रेजेंटेड व्हाट, इट रिप्रेजेंटेड स्लोप ऑफ टैंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू fx एट P। मतलब जो हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे किसी पॉइंट पे, तो जो वैल्यू आती थी वो हमें क्या बताती थी, स्लोप ऑफ टैंजेंट एट दैट पॉइंट। तो डेरिवेटिव्स का यूज क्या हुआ कि अगर मुझे किसी कर्व पे टैंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो उस पॉइंट पे जब मैं फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, उस पॉइंट पे टैंजेंट का स्लोप। नाउ ऑब्वियसली टैंजेंट इज अ लाइन, tangent and normal is a straight line, and equation of straight line क्या होता है, y minus y1 m x minus x1, where x1 y1 क्या होता है, the point through which the line passes, एंड m क्या होता है, स्लोप ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन। तो अगर मुझे दो ये चीजें पता लग जाएं कि हमारी लाइन का स्लोप क्या है और हमारी लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, तो हम उस लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो इन अवर केस हमारा जो पॉइंट P है, हम P पे तैयार हैं, तो P के कोऑर्डिनेट्स हमें पता अगर हो, लेट्स से x1 y1 पे हम टैंजेंट बना रहे हैं, तो पॉइंट तो हमारे हो गए x1 y1, और जो टैंजेंट का स्लोप, इस केस में स्ट्रेट लाइन क्या है, टैंजेंट है, तो टैंजेंट का स्लोप कहां से आ जाएगा, dy by dx से, किस पॉइंट पे, P पे। तो इफ वी फाइंड dy by dx एट x1 y1, तो ये हमको क्या बता देगा, स्लोप ऑफ टैंजेंट एट P। और x1 y1 क्या होगा, पॉइंट जो टैंजेंट पर है, कर्व पर है लेकिन टैंजेंट पर भी है। तो हमारी इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या निकल के आएगी, y माइनस y1 m की जगह हम क्या यूज कर लें, dy by dx दैट इज स्लोप ऑफ टैंजेंट एट x1 y1 x माइनस x1। दिस बिकम्स your equation of tangent to a curve y is equal to fx at x1 y1। हम लोग को ये बात बार बार ध्यान रखनी है कि हमें वो पॉइंट जरूर पता होना चाहिए जहां पे हम टैंजेंट बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट स्लोप आएगी तो डिफरेंट इक्वेशन ऑफ टैंजेंट आएगी। तो पॉइंट पहले पता लगाना होगा कि किस पॉइंट पे हम टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, वही पॉइंट हमें एज कोऑर्डिनेट्स यूज करने, और वही पॉइंट हमें यूज करने हैं dy by dx की वैल्यू निकालने पे। तो हमें पॉइंट हमें हमेशा पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पे हम टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। नाउ सिमिलरली अगर इस पॉइंट पे हम नॉर्मल बनाते हैं, नॉर्मल इज व्हाट, नॉर्मल इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट एट पॉइंट P। जिस पॉइंट पे टैंजेंट बना रहे हैं उसी पॉइंट पे हम नॉर्मल बनाए। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, y माइनस y1। अब नॉर्मल का स्लोप और टैंजेंट के स्लोप में क्या रिलेशन होगा, mt मींस स्लोप ऑफ टैंजेंट इनटू mn स्लोप ऑफ नॉर्मल। इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री, दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, लेट्स से यहां पे हम mt लिखते हैं, या mn इज इक्वल टू -1 अपॉन mt। जो भी स्लोप ऑफ टैंजेंट है उसका -1 अपॉन कर दे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। नाउ स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या था, वो तो dy by dx था एट x1 y1, अगर हम x1 y1 पे ही नॉर्मल बना रहे हैं। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गया, -1 अपॉन mt विच इज dy by dx एट x1 y1। तो यहां पे स्लोप क्या होगा, कोई लाइन अगर हमारी लाइन के परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप क्या होगा, -1 अपॉन m।
x माइनस x1। तो अगर हम नॉर्मल की बात कर रहे थे यानी mt हो जाएगा। यहाँ पहले हम लिखते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, y माइनस y1। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस x1। क्यों? क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल तो आपस में परपेंडिकुलर है, तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। नाउ y माइनस y1 -1 अपॉन mt क्या था, mt was dy by dx slope of tangent at x1 y1 into x minus x1। तो या तो हम ये लिख लें सीधे सीधे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की इक्वेशन ये लिख लें, और y माइनस y1 dx को ऊपर ले जाए तो dx अपॉन dy at x1 y1 with a negative sign x minus x1, where x1 y1 are the points on the curve and at which the tangents are drawn. x1 y1 are the points on the curve। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम कौन सा केस ले रहे हैं, when we are drawing tangents to the curve at a point on the curve, x1 y1 are the points on the curve and at which the tangent and normal are drawn। Moreover, x1 y1 will always satisfy the equation of curve fxy equals to 0 if x1 y1 lies on the curve। अगर x1 y1 पॉइंट हमारे कर्व पर है, लेट्स से ये हमारा कर्व है और इस पे पॉइंट x1 y1 है, तो ये इस अगर कर्व की इक्वेशन y इज इक्वल टू fx है तो ये पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। दैट मींस y1 विल ऑलवेज बी इक्वल टू fx1। और जिस पॉइंट, और ये x1 y1 और क्या काम कर रहा है, इसी पॉइंट पे हम टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, तो उन इक्वेशंस को भी ये सेटिस्फाई करेगा। तो पहली चीज तो हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल क्या होती है, उनकी इक्वेशंस का फॉर्म ये होगा दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह, बस द ओनली डिफरेंस इज n की जगह हम क्या यूज करेंगे, टेंजेंट में dy by dx और नॉर्मल में करेंगे -1 अपॉन dy by dx। क्यों? क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। x1 y1 क्या है, वो पॉइंट्स जहां पे हमने टेंजेंट और नॉर्मल बनाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि x1 y1 जो हम इन इक्वेशंस में यूज कर रहे हैं, दे आर लाइंग ऑन द कर्व। इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है, x1 y1 lie on the curve। ये हम टेंजेंट नॉर्मल कब बना रहे हैं, जब किस पॉइंट पे बना रहे हैं, जब वो पॉइंट कर्व पर है, उसके लिए हमारी ये इक्वेशंस है। नाउ जब हम किसी फंक्शन कर्व है y इक्वल टू fx, उसका हमने डिफरेंशिएशन किया dy by dx इज इक्वल टू f डैश x। अब ये जो डिफरेंशिएशन आया ये तो जनरल फॉर्मूला है, किस पॉइंट पे हम ये डिफरेंशिएशन कर रहे हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। तो जब भी हम लिखते हैं dy by dx एट x1 y1 मींस f डैश x की वैल्यू निकाल रहे हैं x1 y1 पे। ये क्या बताता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, मतलब x1 y1 पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू क्या है, ये तो एक वैल्यू होगी। अब बात ये कि वैल्यू क्या हो सकती है, एक केस हो सकता है ये फाइनाइट वैल्यू आए, एक हो सकता है ये इंफिनिटी आए प्लस माइनस, ऐसा भी हो सकता है कि फ्लक्चुएटिंग वैल्यू है। मतलब टेंजेंट और नॉर्मल, जब टेंजेंट हम निकाल रहे थे तो हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड से वैल्यूज निकालने की कोशिश की थी। टेंजेंट लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से, जब दोनों तरफ से एग्जिस्ट करता है और सेम होता है तभी टेंजेंट एग्जिस्ट करता है। तो
ऐसा भी हो सकता है कि हम dy बाई डी एक्स जब x1 y1 पे निकाले तो वो प्लस माइनस इंफिनिटी दे, या ऐसा हो सकता है राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स इसके एग्जिस्ट ना करें या इक्वल वैल्यू ना दे। तो तरीका क्या है कि आप dy बाई डी एक्स निकालें किसी फंक्शन का या कर्व का, और उसकी लिमिट x टेंड्स टू x1, जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट और नॉर्मल निकालना चाहते हैं उस पॉइंट पे उसकी लिमिट लें। तो अगर उसकी वैल्यू m आ गई, मतलब एक फाइनाइट वैल्यू आ गई, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर उसकी वैल्यू प्लस या माइनस इंफिनिटी है तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि आपके टेंजेंट्स क्या है, वर्टिकल टेंजेंट्स है। क्यों है अभी देखते हैं। अब इसमें भी m अगर फाइनाइट है, उसमें अगर इसमें हम एक केस और ले लेते हैं कि अगर m 0 है तो फिर हमारा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। मतलब m की वैल्यू 0 आ गई तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स हो जाएगा। उसके बाद क्या हो सकता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। जब हम लिमिट निकालते हैं तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वो निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव है, तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। जब दोनों साइड की लिमिट्स एग्जिस्ट करती है और इक्वल होती है तभी वो लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आरएसडी और एलएसडी सेम ना हो। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब हम कहेंगे कि टैंजेंट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब टैंजेंट हम उस पॉइंट पे नहीं बना सकते। और चौथा केस होता है कि हमारा क्या हो, जैसे लिमिट में अगर हम पढ़ते हैं तो लिमिट में फिर क्या हो सकता है, फ्लक्चुएटिंग लिमिट्स। तो बेसिकली हमारे चार ऑप्शंस हो सकते हैं जब हम dy बाई डी एक्स किसी पॉइंट पे निकालें। या तो वो फाइनाइट वैल्यू होगी, फाइनाइट वैल्यू में भी अगर वो 0 हुई तो हम कहेंगे कि हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का मतलब क्या होता है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर प्लस माइनस इंफिनिटी वैल्यू आई तो फिर क्या होगा, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्सिस। आरएसडी नॉट इक्वल टू एलएसडी में मतलब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करी, तो इसका मतलब टेंजेंट नहीं बन सकता। एंड देन द लास्ट केस इज द फ्लक्चुएटिंग लिमिट, उसमें आप फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज कीजिए। पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हमारे होते हैं वो फाइनाइट वैल्यू और एट मोस्ट इन्फिनिट वैल्यूज के लिए होते हैं, ज्यादातर तो फाइनाइट के लिए होते हैं हमारे। नाउ अभी हम लोग ने बात करी कि अगर हमारी लिमिट x टेंड्स टू x1 एट dy बाई डी एक्स लेट्स से फाइनाइट आई, तो फाइनाइट में एक केस ही हो सकता है कि वैल्यू 0 है, तो यानी m क्या आया, 0। अब dy बाई डी एक्स हमें क्या बताता है, dy बाई डी एक्स क्या होता है, एनी पॉइंट x1 y1 इट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, यानी स्लोप ऑफ अ लाइन की बात हो रही है। स्लोप ऑफ लाइन हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से। m की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा होती है। अगर m की वैल्यू 0 आई तो इसका मतलब tan थीटा 0 है। अगर tan थीटा 0 है तो थीटा की वैल्यू 0 हो गई। मोर ओवर एक चीज और कि m जो हमारा स्लोप है तो दैट इज इक्वल टू tan थीटा, और कोई भी लाइन वेयर थीटा क्या होता था, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, दैट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता था, वो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या एंगल बना रही है। तो ये जो थीटा की वैल्यू ये हमेशा कहां से कहां रहती है, 0 से लेके 180। नाउ तो अगर m 0 है तो इसका मतलब tan थीटा 0 है। tan थीटा 0 यानी थीटा 0 हो गया, थीटा 0 हो गया या पाई हो गया, क्योंकि tan 0 भी 0 होता है, tan 180 डिग्री भी 0 होता है। तो इसका मतलब हमारी लाइन x एक्सिस से क्या एंगल बना रही है, 0 एंगल बना रही है या 180 बना रही है। तो इसका मतलब वो क्या हो गई, पैरेलल हो गई। पैरेलल लाइन जो होती है वो x एक्सिस से क्या एंगल बनाती है, 0 डिग्री या 5 डिग्री। तो इसीलिए हम लोग ने कहा था कि अगर आपने किसी पॉइंट dy बाई डी एक्स निकाला कर्व का, x1 y1 उसमें वैल्यू पुट करी और उसकी वैल्यू 0 आ गई, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगी, लाइन, वो टेंजेंट कैसे हो जाएगा, टेंजेंट वुड बी
is parallel to x axis. Now इसका रिवर्स केस, अगर हमने dy by dx निकाला किसी पॉइंट x1 y1 पे और उसकी वैल्यू प्लस माइनस इंफिनिटी आई, अब प्लस माइनस इंफिनिटी आई मतलब m की वैल्यू क्या आई, स्लोप क्या आया, प्लस माइनस इंफिनिटी, और m क्या होता है, tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू डेफिनेटली फिर क्या है, 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री है इसका मतलब हमारा जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है, वो एक्स एक्सिस से 90 डिग्री बना रहा है हमारा ये टेंजेंट, ये हमारा टेंजेंट था। तो अगर वो 90 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस से तो वो क्या हो गया, वाई एक्सिस के तो क्या हो गया, पैरेलल हो गया। इसलिए हम कह रहे हैं कि dy by dx आप निकालें और उस पे x1 y1 जिस पॉइंट पे आप dy by dx निकालने रखें, अगर वो प्लस माइनस इंफिनिटी आया तो इट रिप्रेजेंट्स दैट रादर tangent is parallel to y axis। अगर वो जीरो नहीं है या प्लस माइनस इंफिनिटी नहीं तो डेफिनेटली फिर वो ऑब्लिक होगा, ना वो हॉरिजॉन्टल होगा ना वो वर्टिकल होगा। नाउ अब इन दो केसेस के लिए हमारी इक्वेशंस कैसे बनेंगी, लेट्स से केस 1 व्हेन m इज 0, m 0 मतलब dy by dx की वैल्यू x1 y1 पे 0 आई, तो हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या थी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी y माइनस y1 इक्वल्स टू dy by dx at x1 y1 x माइनस x1। अब dy by dx की वैल्यू तो 0 आ गई, तो इसका मतलब राइट साइड तो पूरा 0 हो गया, देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्म क्या होगा, y इक्वल्स टू y1, मतलब जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट बना रहे हैं उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा y इक्वल्स टू वही कोऑर्डिनेट हो जाएगा, विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी उस पॉइंट पे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन dy बाय dx एट x1 y1 x माइनस x1। अब dy बाय dx क्या हो गया है, 0 हो गया, तो अगर मैं इसको राइट साइड ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स y माइनस y1 इंटू dy बाय dx एट x1 y1, तो ये तो 0 है, तो देयरफॉर x माइनस x1 क्या आ गया, 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू x1। ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, मतलब जिस पॉइंट पे हम टेंजेंट एंड नॉर्मल बना रहे हैं उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा x विल बी इक्वल टू दैट वैल्यू, तो वो नॉर्मल। और ये हम लोग समझ भी सकते हैं, लेट्स से सपोज हमारा कर्व ये है, हमने लेट्स से इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाया, तो टेंजेंट कैसे होगा, ऐसे होगा, नाउ दिस टेंजेंट, अच्छा और नॉर्मल कैसा होगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो चेक करिए, ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई, तो ये लाइन ऑब्वियसली फिर किसके पैरेलल हो जाएगी, वाई एक्सिस के, और ये क्या है, नॉर्मल है, और ये क्या है, टेंजेंट है। तो जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाती है, y इक्वल्स टू y1 इफ दिस पॉइंट इज x1 y1, और नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू x1 जो इसका x कोऑर्डिनेट है। नाउ केस 2 क्या है कि m की वैल्यू क्या आ जाए, प्लस माइनस इंफिनिटी, एंड दैट इज इक्वल टू dy by dx, m तो dy by dx होता है x1 y1, तो फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या निकलेगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती y माइनस y1 dy by dx x1 y1 पर x माइनस x1। अब dy by dx की वैल्यू क्या आ रही है, इंफिनिटी आ रही है, दिस इज टेंडिंग टू प्लस या माइनस इंफिनिटी, तो इसको अगर हम लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर में ले जाएं, dy by dx एट x1 y1 इज इक्वल टू x माइनस x1, तो ये पार्ट क्या है, इंफिनिटी प्लस माइनस की तरफ जा रहा है, तो ये ओवरऑल वैल्यू किस तरफ जाएगी, टेंड्स टू 0, तो फिर x माइनस x1 क्या हो गया, 0, x इक्वल्स टू x1, ये आएगी टेंजेंट की इक्वेशन। जिस पॉइंट पे भी आप टेंजेंट निकाल रहे हो उसका x कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू x,
विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसी तरह इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जब निकालेंगे तो वो क्या होगा, y माइनस y1 माइनस 1 अपॉन dy बाई dx एट x1 y1 x माइनस x, बट x dy बाई dx एट x1 y1 तो इंफिनिटी आ रहा है प्लस माइनस, तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो जाएगा, तो therefore y minus y1 0, therefore y equals to y1. Therefore equation of normal at point x1 y1 when m is plus minus infinity would be y equals to y1. मतलब जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो टेंजेंट नॉर्मल, उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा उसको इक्वल टू y कर दें तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आएगा। Now let's visualize this. Suppose लेट्स से हमारा कर्व है कुछ इस किस्म से, ये वो पॉइंट है जिसपे हम टेंजेंट नॉर्मल निकाल रहे हैं, लेट इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है। तो इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो वो ऐसे आएगा, और नॉर्मल बनाएंगे तो ऐसे आएगा। चेक करिए, ये टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो गई, x इक्वल्स टू, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है x1, x इक्वल्स टू x1, और ये नॉर्मल है, नॉर्मल परपेंडिकुलर है टेंजेंट को, तो ये लाइन किसके पैरेलल हो गई, y एक्सिस के पैरेलल हो गई, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू y1 जो इसका y कोऑर्डिनेट है। तो जब m प्लस माइनस इंफिनिटी होता है तो टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस होता है, नॉर्मल पैरेलल टू x एक्सिस होता है, और अगर m हमारा 0 होता है तो हमारा टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होता है और नॉर्मल पैरेलल टू y एक्सिस होता है, और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन हम ऐसे निकाल सकते हैं। नाउ लेट्स टेक अ केस कि सपोज हमारा ग्राफ कुछ इस किस्म से, नाउ दिस इज पॉइंट P x1 y1। अब अगर हम कहें कि P पे हम टेंजेंट बनाना चाहते हैं, वी वांट टू मेक टेंजेंट एट P, तो देखिए नहीं हो सकता, क्योंकि P पे अगर हम टेंजेंट लेफ्ट साइड से बनाएंगे तो टेंजेंट ऐसे बनेगा, और अगर राइट साइड से बनाएंगे तो बनेगा ऐसे। ये दोनों टेंजेंट्स कभी कोइंसाइड करेंगे ही नहीं। इसका सीधा मतलब ये है कि लेफ्ट साइड से जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू x1, let's put it right, dy by dx, और राइट हैंड साइड से जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू x1 dy by dx, यहां हम x1 माइनस या x1 प्लस, तो ये दोनों वैल्यूज, लेट्स से ये li ये mi, ये दोनों वैल्यूज सेम नहीं आएंगी, तो इस पॉइंट पे हम क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा, यानी LHD विल नॉट बी इक्वल टू RHD, तो यहां पे हम टेंजेंट नहीं बना पाएंगे, टेंजेंट कैन नॉट बी मेड, यहां पे हम टेंजेंट इस पॉइंट पे नहीं बना पाएंगे। तो हमने देखा जब m 0 है या फाइनाइट वैल्यू तो टेंजेंट बन जाएगा, m की वैल्यू प्लस माइनस इंफिनिटी तो टेंजेंट बन जाएगा। फिर केस क्या था कि RHD और LHD एग्जिस्ट न करे तो हम टेंजेंट नहीं बना पाएंगे उस पॉइंट पे। अगर हम समराइज करें नाउ, इफ दिस समराइज नाउ कि हमने क्या करा, तो हमने कहा कि अगर हम किसी, हमारा कोई कर्व है y इक्वल टू fx, उसको हमने डिफरेंशिएट किया dy बाई dx, फिर हमने उसमें पॉइंट रखा जिस पॉइंट पे हम निकालना चाहते हैं टेंजेंट नॉर्मल x1 y1। अब इसमें हमने पढ़ा कि अगर m की वैल्यू 0 आई तो टेंजेंट क्या होंगे, पैरेलल टू x एक्सिस, और नॉर्मल होगा पैरेलल टू y एक्सिस। अगर m प्लस माइनस इंफिनिटी आया, इसको हम m मान लेते हैं, तो टेंजेंट हो गया पैरेलल टू y एक्सिस, और नॉर्मल हो गया पैरेलल टू x एक्सिस। अगर m फाइनाइट है बट नॉट इक्वल टू 0, तो फिर आपके नॉर्मल टेंजेंट नॉर्मल्स होंगे ऑब्लिक। और चौथा केस है कि m डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब लिमिट x टेंड्स टू x1 dy by dx
डज नॉट एक्सिस्ट, मतलब RHD इज नॉट इक्वल टू LHD, तो tangent cannot be made. Further, अगर tangent parallel to x axis और m 0 है तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी? y equals to y1, नॉर्मल की क्या होगी? x equals to x1. अगर m प्लस माइनस इंफिनिटी है तो क्या हो गया? tangent की पैरेलल टू y एक्सिस है तो x equals to x1 हो जाएगी और नॉर्मल की y equals to y1 हो जाएगी. फर्दर tangent क्या होगा? ये तो हम लोग पहले ही कह चुके हैं, नो नीड ऑफ डूइंग दिस. तो tangent हमारा पैरेलल टू x एक्सिस होगा, नॉर्मल पैरेलल टू y एक्सिस, और m प्लस माइनस इंफिनिटी में tangent पैरेलल टू y एक्सिस और नॉर्मल पैरेलल टू x एक्सिस. और एक चीज और कह सकते हैं, tangent हमारा क्या होगा? हॉरिजॉन्टल, नॉर्मल होगा वर्टिकल, और जब m प्लस माइनस इंफिनिटी होगा तो tangent होगा वर्टिकल और नॉर्मल होगा हॉरिजॉन्टल. नाउ वी डिस्कस द केस, दो केस पढ़ेंगे. इफ द tangent is equally inclined to the axis. फर्स्ट केस, इसका क्या मतलब है? कंडीशन लिख देते हैं. तो dy by dx at x1 y1 could be plus minus 1, that is m. स्लोप ऑफ tangent क्या होगा? प्लस माइनस 1. कैसे? सपोज वी टेक and we have 4 cases. Now suppose आपका कोई कर्व है, let's say we take आपका कोई टेंजेंट है जो सपोज ऐसे बना, कोई कर्व है आपके पास. सेकंड केस क्या हो सकता है कि आपका टेंजेंट ऐसे बने. थर्ड केस क्या हो सकता है? आपका टेंजेंट ऐसे बने. एंड चौथा केस क्या हो सकता है? टेंजेंट ऐसे बने. लेट्स से आपका कर्व ऐसे था, सपोज लेट्स से कर्व आपका ऐसे था, लेट्स से कर्व आपका ऐसे था, एंड लेट्स से कर्व आपका ऐसे था. तो टेंजेंट्स ऐसे बने सपोज आपके. इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है? इक्वली मतलब बराबर, इंक्लाइंड मतलब झुकाव, मतलब वो इक्वल एंगल्स बना रहा है. किससे? एक्सिस से. एक्सिस आपकी क्या है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस. वाई एक्स वाई एक्स वाई एंड एक्स. अब ये जो टेंजेंट है मेकिंग इक्वल एंगल्स विद एक्सिस, मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम है. लेट्स से ये थीटा है, ये भी थीटा है. इसी तरह इक्वली इंक्लाइंड है, ये एंगल और ये एंगल थीटा सेम है. सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल सेम है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से सेम एंगल बना रहा है हमारा टेंजेंट. पर सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल तो 180 होता है और ये 90 डिग्री है. एक्सिस इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री. तो देयरफॉर थीटा प्लस 90 शुड बी 180. तो 2 थीटा क्या हो जाएगा? 180 माइनस 90. तो थीटा क्या आ जाएगा? 45 डिग्री. मतलब ये और ये एंगल, ये सारे केसेस में एंगल क्या आ जाएगा? 45 डिग्री. नाउ ध्यान दीजिए, ये एंगल क्या होगा? दिस वुड बी 145. दिस एंगल इज 45. दिस एंगल इज अगेन 135 क्योंकि ये 45 है. अगेन दिस एंगल इज 45. नाउ स्लोप जब हम निकालते हैं किसी लाइन का, स्लोप ऑफ लाइन, तो वो क्या होता है? tan थीटा. थीटा क्या होता है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कैसे डिफाइन किया जाता है? द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड एंटी क्लॉकवाइज. मतलब अगर हमारी ये लाइन है तो हमारी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये है पॉजिटिव डायरेक्शन,
और एंटी क्लॉकवाइज बनाइए तो जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है। तो अगर आप फर्स्ट केस देखें, दिस इज केस 1, दिस इज केस 2, दिस इज केस 3 एंड दिस इज लेट्स से केस 4। तो फर्स्ट केस में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या लेंगे आप? पॉजिटिव डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री, मतलब थीटा क्या आएगा 45 डिग्री फर्स्ट केस में। सेकंड केस में क्या होगा, सॉरी 135 होगा इस वाले में क्या होगा हमारा 135। क्यों? क्योंकि अंदर का एंगल 45 है, सम ऑफ एंगल्स 180 होते हैं, तो ये एंगल आएगा 135। केस 2 में हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा? पॉजिटिव डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, तो 45 डिग्री आएगा। इसी तरह थर्ड केस में क्या होगा एंड फोर्थ केस। थर्ड केस में एंगल क्या बन रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, तो 135 डिग्री। एंड लास्ट केस पॉजिटिव डायरेक्शन, लेट्स से पॉजिटिव डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री। तो चौथे केस में क्या एंगल बना? 45 डिग्री। तो फर्स्ट केस में tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी? tan 135, और tan 135 क्या होता है? -1, तो m हो गया -1। इसी तरह सेकंड केस में थीटा 45 है तो tan 45 हो गया +1। थर्ड केस में tan 135 अगेन क्या हो जाएगा? -1, और चौथे केस में अगेन tan 45 हो जाएगा विच इज +1। यानी जो चार पॉसिबल केसेस थे, चारों ही केसेस में हमने एनालाइज किया कि हमारा टेंजेंट अगर इक्वली एक्सिस है तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या तो 45 होगा या 135। करस्पॉन्डिंगली हमारा स्लोप या तो +1 होगा या -1 होगा। तो जब भी आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि द टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, इट सिंपली मींस कि आपको स्लोप यानी dy/dx एट x1 y1 क्या लेना है? +-1। Now we talk of the second case. If the tangent cuts equal intercepts with the axis, तो फिर हम m को क्या लेंगे? m क्या होता है? dy/dx at x1 y1, उसकी वैल्यू क्या लेंगे? -1। इसको समझिए, लेट्स से we have 4 cases. लेट्स से सपोज हमारा टेंजेंट ये है, एक केस में ऐसा हो सकता है, एक केस में ऐसा हो सकता है, एक केस में ऐसा हो सकता है। तो लेट्स से हमने अपने कर्व ये ऐसे बना लिए, लेट्स से ये। नाउ इक्वल इंटरसेप्ट्स का क्या मतलब है? इंटरसेप्ट क्या होते हैं? पॉइंट वेयर द लाइन कट्स दी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ओरिजिन से जो उसकी दूरी होती है वो इंटरसेप्ट होते हैं। लेट्स से अगर हमारी लाइन ऐसे कट कर रही है तो एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन कट्स द एक्स एक्सिस एंड ओरिजिन। इसी तरह वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ द लाइन वेयर इट कट्स द वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन। तो ये हमारा वाई इंटरसेप्ट है, ये हमारा एक्स इंटरसेप्ट है। और इंटरसेप्ट की क्या खासियत होती है? दे आर साइन सेंसिटिव, मतलब इंटरसेप्ट जब हम बताते हैं तो हमें उसका साइन भी बताना होता है। तो इस केस में एक्स इंटरसेप्ट क्या है? पॉजिटिव है, वाई इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है। अगर ऐसा होगा तो एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा? नेगेटिव, और वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव। अगर ऐसे कट रही लाइन तो एक्स इंटरसेप्ट भी नेगेटिव, वाई इंटरसेप्ट भी नेगेटिव। एंड लास्ट केस अगर ऐसे है तो एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव और वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव। तो जब हम कहते हैं इक्वल इंटरसेप्ट्स तो इसका मतलब होता है उनकी वैल्यू भी इक्वल हो और उनका साइन भी सेम हो। तो चेक करिए, अगर इक्वल इंटरसेप्ट है तो ये एंगल अगर 45 है तो ये क्या होगा? 135। चेक करिए, इस केस में एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों का साइन पॉजिटिव, इसमें वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव लेकिन नेगेटिव,
इसमें x और y दोनों इंटरसेप्ट नेगेटिव, इसमें x इंटरसेप्ट पॉजिटिव और y इंटरसेप्ट नेगेटिव। तो ऑब्वियसली इक्वल इंटरसेप्ट्स की जब बात होगी तो केस नंबर 2 और केस नंबर 4 नहीं हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसमें इंटरसेप्ट्स के साइन ही अलग हैं, तो वैल्यू कैसे इक्वल हो जाएंगी। तो ये केसेस नहीं होंगे। द ओनली केस लेफ्ट विद फॉर इक्वल इंटरसेप्ट्स वुड बी द केस जब दोनों इंटरसेप्ट पॉजिटिव हैं, दोनों इंटरसेप्ट नेगेटिव हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट सेम हो, मतलब ये लेंथ, रादर वी शुड यूज अ डिफरेंट कलर, ये लेंथ और ये लेंथ सेम हो। इक्वल इंटरसेप्ट्स का तो यही मतलब है, यानी अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो फिर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो देयरफॉर दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, और ये 90 है तो थीटा क्या आ जाएगा 45। द सेम लॉजिक विल गो हियर, ये लेंथ इक्वल्स टू ये लेंथ, तो ये आइसोसेलेस हो गया और ये 90 है, तो फिर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा। देखो इसकी भी वैल्यू क्या आ गई 45 है, तो फिर ये एंगल क्या है 135, और यही आपकी स्लोप भी होगी क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा इस केस में, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा, फर्स्ट केस में क्या आएगा 135 डिग्री, और चेक करिए सेकंड केस में भी क्या होगा 135 ही होगा, क्योंकि ये 45 होगा तो ये फिर 135 होगा। तो यानी इन बोथ केसेस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वुड बी 135 एंड देयरफॉर द स्लोप m which is dy by dx at x1 y1, और m क्या होता है tan थीटा यानी tan 135, ये क्या वैल्यू आएगी -1। तो जब भी आपको कहा जाए कि योर tangents are making equal intercepts, तो इसका मतलब उसका स्लोप क्या कर दीजिए -1, अनसॉल्व करिए। इसी तरह अगर वो कह दे इफ नॉर्मल्स कट इक्वल इंटरसेप्ट, तो नॉर्मल की स्लोप को -1 के बराबर कर दीजिए। इसी तरह अगर वो कहे कि द नॉर्मल्स आर इक्वली इंक्लाइंड, तो नॉर्मल की स्लोप को -1 कर दीजिए। इफ वी समराइज कि इफ tangents आर इक्वली इंक्लाइंड, ऐसा बोले तो क्या कर दीजिए dy by dx at x1 y1, जिस पॉइंट पे भी निकाल रहे हैं वो क्या हो जाएगा +-1। इफ tangents cut equal intercepts, ऐसा बोले तो फिर dy by dx दैट इज स्लोप ऑफ tangent x1 y1 पे क्या कर दीजिए -1। सिमिलरली इफ नॉर्मल इज इक्वली इंक्लाइंड बोले तो क्या कर दीजिए, नॉर्मल की स्लोप क्या थी -1/dy by dx एट x1 y1, इसकी वैल्यू क्या कर दीजिए +-1। एंड लास्टली इफ नॉर्मल कट्स इक्वल इंटरसेप्ट्स कहे तो क्या कर दीजिए, इसकी स्लोप को, नॉर्मल की स्लोप को dy by dx एट x1 y1 क्या कर दीजिए -1। नाउ वी टॉक ऑफ द केस जब हमारी इक्वेशंस क्या है, इक्वेशंस आर इन पैरामीट्रिक फॉर्म, मतलब हमें y और x में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया है कर्व में, तो y इज अ फंक्शन ऑफ t एंड x इज अ फंक्शन ऑफ t। इसको हम पैरामीट्रिक फॉर्म कहते थे। या तो हम t where t is our t is पैरामीटर, या तो हम t को एलिमिनेट कर दे, y और x में रिलेशन निकालने y इक्वल्स टू fx, एलिमिनेट t। तो हम जैसे अभी तक हमने सब पढ़ा है कैसे टैंजेंट नॉर्मल निकालते हैं, वी कैन डू दिस। लेकिन अगर हम ये नहीं कर पाएंगे या कन्वीनियंट नहीं है t को हटा पाना, तो हाउ डू वी फाइंड द टैंजेंट एंड नॉर्मल फॉर सच कर्व्स। तो हम क्या करते हैं, dy by dx से ही हमको dy by dx ही स्लोप ऑफ टैंजेंट होता है, स्लोप ऑफ टैंजेंट। तो इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालते थे पैरामीट्रिक के फॉर्म में, dy by dt अपॉन dx by dt। तो हम क्या कर देंगे f dash t अपॉन g dash t, इससे तो हम निकाल लेंगे स्लोप। अब t की वैल्यू दे दे हमको एट t इक्वल्स टू लेट्स से t1। सेकेंड पॉइंट ये है कि जब हमें पैरामीट्रिक फॉर्म दिया जाता है
तो y इज इक्वल टू एफ टी एंड x इज इक्वल टू जी टी एक्ट एज कोऑर्डिनेट्स। मतलब अगर मुझे x1 y1 चाहिए तो y1 की वैल्यू क्या होगी, t की जगह t1 रख दें, एंड x1 चाहिए तो t की जगह t1 रख दें। तो मुझे x1 y1 की वैल्यू भी कहां से मिलती है, जो इक्वेशन दे रखी पैरामीट्रिक फॉर्म उसी से मिल जाती है। तो अगर अब आपसे कहा जाए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालें तो कैसे होगा, y माइनस y1 m x माइनस x1 ऐसे होता है। टेंजेंट के केस में क्या होता है, y माइनस y1 dy बाई dx एट x1 y1 x माइनस x1 ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। तो यहां पे आप चेक करिए, y माइनस y1, y1 क्या है, ft1। नाउ dy बाई dx की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, ये चीज, यानी f डैश t अपॉन g डैश t एट विच पॉइंट, t इक्वल्स टू t1 एंड x माइनस x1, x1 की जगह क्या लिख दे, gt1। तो दिस बिकम्स योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर पैरामीट्रिक कर्व, पैरामीट्रिक इक्वेशन। कहने का मतलब यह है कि dy बाई dx तो आपको पता ही, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, जो भी पैरामीटर उसके रिस्पेक्ट में दोनों फंक्शंस को डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर दें। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पैरामीट्रिक फॉर्म में जब इक्वेशन दी जाती है तो जो x और y के फंक्शंस है, दे एक्ट एज कोऑर्डिनेट्स। मतलब उसमें आप t की वैल्यू या थीटा जो जिसके भी टर्म्स में पैरामीटर है उसकी वैल्यू रखेंगे तो आपको x1 y1 कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाते हैं ना। सिमिलरली अब अगर हमको इसका नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे, y माइनस एफ टी वन इज इक्वल टू उल्टा हो जाएगा माइनस ऑफ g डैश टी अपॉन f डैश टी एट t इक्वल्स टू t1 x माइनस gt1। दिस बिकम्स इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर पैरामीट्रिक इक्वेशन या कर्व।